Welcome back student, a brand new lecture of Computer Fundamental. In this lecture, we will continue our previous lecture, that is Computer Network. In this topic, we will discuss the various transmission media of computer network. A transmission media, a communication media or a transmission media of a network refer to the transmission media or connecting media used in the network. A transmission media can be defined as anything that can carry information from source to destination. It can be broadly defined as anything that can carry information from source to destination. It refers to the physical media through which communication signal can be transmitted from one point to another point. The transmission media can be divided into two categories. The first one is guided media, that is wired media, and the second one is unguided media, that is wireless media. So we start with guided media or wired technology. This data signal is guided media is bounded by the cable system that guide the data signal along specific path. It consists of cable composed of metal like copper, tin and silver. Basically, we divide the guided media into three categories. The first one is twisted pair cable. Twisted pair cable is still one of the most common transmission media. A twisted pair cable consists of two conductors which are normally made of copper. Each conductor has its own plastic insulation, typically 1 mm thick. These cables are twisted together and the wire are twisted in a helical form. Similar to the DNA molecules, the twister is done to reduce crosstalk. Twisted pair cables are used for long distance connection like telephone line, which are usually organized as large cable contain numerous twisted pairs. बेसिकली क्या होता है ना, मेरे जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. तो पहला आता है मेरे पास गाइडेड मीडिया, जिसमें मैं सारा का सारा काम किसके साथ करता हूँ, वायर के साथ करता हूँ. दूसरा आता है मेरे पास अनगाइडेड मीडिया, जिसमें मेरा सारा का सारा काम होता है बिना वायर के साथ. तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने गाइडेड मीडिया के साथ. गाइडेड मीडिया में क्या होता है कि जो मेरा डाटा को ट्रैवल करवाने का मीडिया होता है उसमें हम केबल्स यूज़ करते हैं. जितना भी काम होता है मेरे केबल के साथ होता है. और इस केबल में क्या है, अलग अलग मेटल्स मेरे पास इंक्लूड होते हैं लाइक कॉपर, टिन, सिल्वर एक्सेट्रा. सो दिस गाइडेड मीडिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल जो है हमारी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन मीडिया है ना, होम बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं, कहीं भी सबसे मेन जो होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम यूज़ करते हैं. हम इसे दो तरीके से रीड कर सकते हैं. या तो हम घर पे जो हमारी लाइट की केबल होती है उसे हम इसमें काउंट कर सकते हैं. अगर इसमें हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जो मेरी टेलीफोन लाइन होती है, टेलीफोन लाइन के अंदर जो मैं केबल यूज़ करता हूँ वो मेरी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं. दूसरी मेरी इंटरनेट के लिए, नेटवर्किंग के लिए जो केबल यूज़ करते हैं वो मेरी क्या होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं. इनको एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया होता है, एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या किया होता है, क्रॉस किया होता है, ताकि इससे फ़ायदा होता है कि जो मेरी क्रॉस टॉक के बाद जो, तो इससे फ़ायदा क्या होता है मुझे, इट ट्विस्टिंग इज डन टू रिड्यूस क्रॉस टॉक. क्रॉस टॉक को क्या करता है, रिड्यूस करता है. नाउ these twisted pair cable are further divided into two parts. First one is UTP, unsealed twisted pair cables. बेसिकली जो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ये वो केबल्स हैं जो हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं. बेसिकली मेरे पास जो दो तरह की केबल्स होती हैं, कैटेगरी 3 की केबल, कैटेगरी 5 की केबल. बेसिकली और भी बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम यहाँ पे दो पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं कैटेगरी 3 की केबल और हम पढ़ रहे हैं कैटेगरी 5 की केबल. तो कैटेगरी 3 ट्विस्टेड कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड वायर जेंटली ट्विस्ट टुगेदर. Most of the office building has a category 3 cable to running their wiring closest to each floor to another floor. The second one is category 5. The most advanced twisted pair cable were introduced. It is similar to the twisted pair. It is similar to the category 3, but it has more twisted. It has, but with more twist per centimeter, which result less crosstalk and better quality of signal. बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिग्नल पास करना, बेसिकली इंटरनेट या मैं बोलता हूँ नेटवर्क, वहाँ पे हम कैटेगरी 5 की केबल यूज़ करते हैं. द सेकंड वन इज शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हैज ए मेटल फॉइल और ए mesh covering each pair of insulated conductor. A metal casing improve the quality of cable by preventing the penetration of noise and crosstalk. It is bulkier and more expensive. Used in telephone line to provide voice and data channel.
बेसिकली जो हमारे DSLs होती हैं, लाइंस होती हैं, इंटरनेट लाइंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉडबैंड हम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं मेरी शील्डेड टेस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, क्योंकि इन्हें का काम क्या होता है, जो आगे मेरी UTP केबल्स होती हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। Here some advantages of twisted pair cable: simple in its structure, physically flexible, can be easily connected, low weight and low in cost. The disadvantage: due to high signal cannot be transferred over a long distance without repeater. Due to low high bandwidth, it is unsuitable for broadband application. Data rates supported up are 1 Mbps to 100 Mbps, 10 Mbps। बेसिकली होता क्या है, देखिए जो इसके डिसएडवांटेज बोल रहे हैं नहीं है ना, तो ठीक है, अच्छी है कि यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट में ज़्यादातर मेरे पास जो होती है, नेटवर्किंग में ज़्यादातर जो होती हैं मेरे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही यूज़ होती हैं। बेसिकली क्या है, हमने नेटवर्किंग जब भी करनी है तो हम छोटी नेटवर्किंग करते हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा नेटवर्किंग करनी है, बड़ी नेटवर्किंग करनी है, जैसे बहुत दूर तक नेटवर्किंग करनी है, फिर मुझे इसमें क्या करता है, रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। बेसिकली रिपीटर्स क्या होता है, रिपीटर इज ए डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल, या मेरे सिग्नल को क्या करता है, रिपीट करता है। जब से वो स्लो होने लगता है, ये लो होने लगता है, उसे क्या करता है, एकदम से बूस्ट कर देता है। नाउ द सेकंड वन इज कोएक्सियल केबल। Coaxial cable has a better shielding than twisted pair cable, so it can span long distance at higher speed. It carries the signal of higher frequency data communication through the network. It consists of solid coater surrounded by a foil shield or conducting brain or wire mesh, each separated by some insulator. It is basically होता क्या है ना, कोएक्सियल केबल जो होती हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं जो घर पे मेरे टीवी पे लगती है, जो मेरा हम बोल सकते हैं जो मेरी केबल की तार है, जो मेरी डिश की तार है, बेसिकली वो कौन सी होती है, मेरी कोएक्सियल केबल होती है। तो उसे हम देख सकते हैं, बिल्कुल बाहर से ब्लैक कलर की होती है, फिर अंदर उन्होंने क्या किया होता है, थोड़ा सा उसमें वाइट कलर लगाया होता है, उसके अंदर एक नेट सा लगा होता है, उसके अंदर फिर वाइट से कलर का कोट किया होता है, उसके अंदर वो केबल पड़ी है, जो एक बिल्कुल अंदर वायर पड़ी होती है। तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसे क्या किया होता है, उन्होंने शील्ड किया होता है, ताकि जो मेरा सिग्नल है बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो सके। देखिए अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं, ठीक है, बीच में सिग्नल कट रहा है, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, हो जाता है। लेकिन अगर मैं घर पे केबल यूज़ कर रहा हूँ, या मैं कुछ और केबल यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली हम लेके चलती हैं, लेकिन अगर उसमें बार बार डिस्टर्बेंस आती रहे तो कोई भी यूजर जो होता है कितना डिस्टर्ब होता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ कोएक्सियल केबल। द फर्स्ट इज 50 OHM केबल एंड 75 OHM केबल। बेसिकली क्या होता है, जो मेरी 50 mH केबल है ना, इज कॉमनली यूज, it is intended for digital signal from start, and the 75H is commonly used to analog transmission and cable। बेसिकली जो मेरे केबल के ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं या मैं एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं 75 mm OHM यूज़ करूँगा, और ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल्स जो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम 50 OHM स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल जो घर पे मेरे टेलीफोन की तार होती है, कोएक्सियल केबल मेरी जो घर पे मेरी केबल की तार होती है, जो मेरे टीवी नेटवर्क की तार होती है। द एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल: ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ कोएक्सियल केबल इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, कैन बी सक्सेसफुली यूज टू शेयर केबल नेटवर्क, कैन ट्रांसमिट सेवरल चैनल साइमल्टेनियसली, सो कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। द डिसएडवांटेज: इट इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज़ नॉट कंपेटिबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं अपने टेलीफोन की तार को कोएक्सियल केबल की तार के साथ जोड़ना चाहूँ या कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैटिबल ही नहीं होते, मुझे बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी हार्डवेयर जो होते हैं यूज़ करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक and transmit signal in form of light from source at one end to another end. At the source there is a LED or LD which module the data into light beam using frequency module technique. An optical fiber consists of a narrow strand of glass called core. A surrounded core is concentric layer of glass called cadling. Cadling is covered by the protective coating of plastic known as jacket. A fiber optical allows transmission over longer distance and higher bandwidth, which is not affected by the electromagnetic field. The speed of fiber optical is 100 times faster than the coaxial. Basically ना,
हम कोएक्सियल केबल्स जो होती हैं ना, जो हमारी कोएक्सियल केबल उनमें कुछ ना कुछ देखिए ट्विस्टेड वेयर में भी हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमारे फाइबर जो हमारी कोएक्सियल केबल थी उनमें, क्योंकि देखिए केबल अगर मैं यूज़ करूँ ट्रांसमिशन के तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर केबल यूज़ करनी है और मुझे उस लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर बहुत जल्दी बहुत ही फास्ट बैंडविड्थ में क्या करना है, डेटा फास्ट ट्रैवल करवाना है, तो दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। इसी चीज़ के लिए हमने ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने एक थर्ड केबल यूज़ की जिसे हमने बोला फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स क्या करती थी बेसिकली, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता था वो एक लाइट की फॉर्म में होता, बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो था मेरे पास डेटा जो था इसमें ट्रैवल होता था। अब देखिए अगर डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल हो रहा है तो अब अगर बहुत अच्छी तरीके से फास्ट ट्रैवल हो रहा है तो मुझे उसे सिक्योर भी बनाना होता है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए, कोई रास्ते में डिस्टर्ब ना करे सिग्नल। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। हेयर सम एडवांटेजेस, इट immune to electrical and magnetic fields so the data does not disturb and pure data is retrieved on the other end. Highly suitable for industrial environment, it is guaranteed secure transmission and high transmission capacity. It can be used for broadband transmission where several channels are handled in parallel. Here is some disadvantage. Connecting to fiber or light source is difficult. Because of noise humidity, that is virtually impossible to tap. These cables require more protection around the cable compared to copper cable. Installation problem, the cables are quite fragile and may need special care. बेसिकली क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह का जो इस पर असर नहीं होता है, अगर उस चीज़ का असर नहीं होता है तो मेरे पास ज़्यादातर क्या होता है, डेटा जो होता है बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, ट्रैवल कर जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है ये प्रैक्टिकली चीज़ हो ही नहीं सकती है। दूसरी चीज़ जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है कई बार, क्योंकि दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि नॉर्मल यूजर इस चीज़ इन केबल्स को यूज़ नहीं करते हैं। इन केबल्स को यूज़ करेंगे बड़ी बड़ी कंपनी जो हमें ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। लाइक हम बोलते हैं कि हमें सर्विस मिल रही है किससे, BSNL से, तो BSNL खुद जो सर्विस ले रही होगी वो आएगी किससे, मेरी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के साथ। क्योंकि देखिए BSNL खुद या एयरटेल या जियो जो भी है इन्होंने खुद तो नहीं करना, इंटरनेट सर्विस खुद की तो नहीं है इनकी, ये भी कहीं ना कहीं से इंटरनेट ले ही रहे हैं तभी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जहाँ से इनके पास इंटरनेट आता है वो आता है इनका किसके साथ, फाइबर ऑप्टिकल्स के साथ। फिर वे आगे हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं फाइबर ऑप्टिकल्स के साथ, थोड़ा थोड़ा आगे फिर कोएक्सियल केबल्स यूज़ कर लेते हैं और हमारे घर तक जो नेट आता है फिर वो आता है किसमें, ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, जो हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर सम guided media. In guided media we discuss, the first one is twisted pair cable, the second one is coaxial cable, and the third one is fiber optical cable. In in these three cable, the fastest data travel in fiber optical cable, data travel much faster than other two cables, but the problem is simple user या होम यूजर इस चीज़ को वियर नहीं कर सकता। बेसिकली फाइबर ऑप्टिकल आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अस इंटरनेट सर्विस। सो द सेकंड वन इज अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया। इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ electrical conductor or a wire. When the computer in a network are interconnect and the data is transmitted through wave, then they are said connected through unguided media. These media transport electromagnetic wave without any physical conductor. This type of communication is referred as a wireless communication. बेसिकली क्या होता है, जो मेरा वायरलेस मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है उसमें मैं केबल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। सारे का सारा काम किसके साथ होता है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम सिंपल अगर हिंदी में बात करते हैं तरंगों के साथ। जो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, वायरलेस सिग्नल, चाहे ब्लूटूथ का सिग्नल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, वाईफाई है, इंफ्रारेड है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे वायरलेस मीडिया होते हैं या मेरे अनगाइडेड मीडिया होते हैं। सो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड अनगाइडेड मीडियाज आर, द फर्स्ट वन इज रेडियो ट्रांसमिशन। व्हेन टू टर्मिनल कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, then such type of communication is known as radio wave transmission. This transmission is also known as radio frequency. Radio waves are easily generated and can travel long distance and can penetrate building easily, so they are used to communicate in both indoor and outdoor.
रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शन मीनिंग दैट दे आर ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स, सो द ट्रांसमीटर और रिसीवर डू नॉट हैव टू केयरफुली अलाइन फिजिकली। बेसिकली होता क्या है ना, रेडियो वेव सिग्नल्स में क्या है ना, हमारे पास ये ओमनी डायरेक्शंस होते हैं, जिसमें बेसिकली मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा एंटीना कहाँ पे है, ये मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है या कहाँ जाना है। ये अपने आप जो होता है सिग्नल्स जो होते हैं ट्रांसफ़र होते रहते हैं, सिग्नल ट्रैवल करता रहता है। और इसके लिए मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे बाहर इससे काम करना है या मुझे अंदर काम करना है। ये सिग्नल घर के अंदर भी काम कर सकते हैं, घर के बाहर भी सिग्नल जो काम कर सकते हैं। हम सिंपली बात कर लेते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज ले लेते हैं, मोबाइल्स ले लेते हैं। बेसिकली मोबाइल्स काफ़ी हद तक रेडियोज़ के ऊपर काम करता है। स्टार्टिंग जो थी रेडियो वेव्स के साथ ही हमारे मोबाइल की स्टार्टिंग हुई थी, धीरे धीरे आगे तो हम देख ही सकते हैं। मोबाइल अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे थोड़ी जाना पड़ता है, हम कहीं भी सिग्नल को कैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है मेरे पास। सो सम एडवांटेजेस आर चीपर देन वायर मीडिया, प्रोवाइड मोबाइलिटी, easy to use over difficult territories, direction equipment is not needed, radio is accessible user throughout the world. And the disadvantage is it is affected by the weather condition, transmission device may require frequency license, low bandwidth offer between distant external interfacing and jamming in secure communication। बेसिकली क्या है, मोबाइलिटी की जो मोबाइल फैसिलिटी हमें इसी की वजह से मिलती है। लेकिन क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, वेदर फोरकास्ट। अगर मैं वेदर की बात करता हूँ, अगर मौसम ख़राब हो तो इसका सिग्नल हमेशा क्या करता है, डिस्टर्ब करता रहता है। हैकर्स बहुत जल्दी इस मोबाइल टेक्नोलॉजी या हमारी रेडियो वेव टेक्नोलॉजी को हैक कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, मेरी इन चीज़ों को जैम कर सकते हैं, मेरे कम्युनिकेशन को टैप कर सकते हैं। तो हमने सुना ही होगा कि जैसे टेलीफोन टैपिंग की जाती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि रेडियो वेव सिग्नल्स हैं, इसलिए टैप कर सकते हैं इसे। तो इसे हम एक तरह से इनसिक्योर मीडिया मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही मीडिया होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0.3 to 300 GHz. Microwave are unidirectional. When an antenna transmits microwave, they can narrow focus. This means the sender and receiver antenna needed to align. The unidirectional property has obvious advantage. The pair of antenna can be aligned without interfering other pair of antenna. Basically क्या होता है ना, जो माइक्रोवेव सिग्नल, देखिए सिंपल से एक डिफरेंस लेते हैं हम। जो मेरे रेडियो वेव सिग्नल है ओमनी डायरेक्शन थे, और जो मेरे माइक्रोवेव सिग्नल है वो यूनी डायरेक्शन है। यूनी डायरेक्शन में क्या होगा, मुझे एंटीना वगैरह जो होते हैं इसके लिए जो है सेट करने ही पड़ते हैं। दूसरी बात होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत हाई होती है। किससे, रेडियो वेव सिग्नल से जो होती है, इनसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है हाई होती है। तो दूसरा फ़ायदा होता है कि अगर देखिए मुझे एंटीना इसके सेट करने में, तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एंटीना मिला हुआ है। अगर उस एंटीने की फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से बाकी फ्रीक्वेंसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिकली मान लेते हैं कि जैसे इंडिया में क्या हुआ, एयरटेल के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारे के सारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी ना, एक में तो नहीं होगी। हम एक सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है वे उसी को ठीक करते हैं, तो बाकी डिस्टर्बेंस जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर एयरटेल में प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बाकी सिग्नल्स को भी डिस्टर्ब करती है कई बार। तो वो चीज़ आ जाती है मेरे पास। हेयर सम एडवांटेजेस, पोटेंशियली मच लेस एक्सपेंसिव, हाईली बैंडविड्थ आर पॉसिबल, communication is possible even difficult territories, require government licensing for and approved equipment, installation is complex, इनसिक्योर। देखिए सिंपल सा फंडा है, जो मेरा वायरलेस मीडिया इनसिक्योर तो है ही। देखिए है तो वायर मीडिया मेरा इनसिक्योर है, लेकिन वायरलेस मीडिया में मेरा क्या होता है, इनसिक्योर होता है। क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी पता लग गया, उस फ्रीक्वेंसी को हैक किया जा सकता है। लेकिन वायर मीडिया को अगर थोड़ा बहुत ट्रेस करना है तो मुझे उस लोकेशन पर जाना पड़ता है जहाँ से वायर गई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिग्नल्स को हम कहीं से भी ट्रेस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि लाइन ऑफ साइट नॉट अवेलेबल। कई बार होता है कि जहाँ से मुझे सिग्नल चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, फिर मुझे एंटीने उसके अलग अलग जगह रखने पड़ते हैं। सैटेलाइट सिग्नल से जैसे हम बात कर सकते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे लेके जाने पड़ते हैं। नाउ वी हैव थर्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड। बेसिकली क्या है ना, इंफ्रारेड हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जो बात की बात है, जो हमारे घर पे रिमोट होते हैं, टीवी रिमोट होते हैं, वहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड क्या करता है, बेसिकली सिग्नल से होते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा होता है हमने, या पर्टिकुलर एक लोकेशन पे पॉइंट करना होता है हमने, तभी मेरा क्या करता है वो रिमोट जो है काम करता है। दूसरी चीज़
जो पिछले दो थे उनमें ज़्यादातर क्या था, पेनिट्रेटिंग ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब दीवारों के आर पार सिग्नल आराम से हो जाता था। लेकिन इंफ्रारेड में क्या होता है, पेनिट्रेट की प्रॉब्लम है, कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल, दीवारों से आर पार नहीं जा सकते। बेसिकली देखिए, अगर मैंने एक रूम में टीवी लगा हुआ है, मैं दूसरे रूम से उसका मोबाइल रिमोट से उसे ठीक नहीं मूव नहीं कर सकता हूँ, या उसे चैनल चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से क्या होता है ना, एक सिस्टम जो होता है दूसरे सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ नहीं करता है, क्योंकि जो रिमोट है एक टीवी का है, उसी उससे मैं किसी दूसरे के साथ तंग नहीं कर सकता। तो ये चीज़ होती है। तो पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं है। बिल्कुल थोड़े थोड़े एरिया पे ये काम कर सकते हैं। जैसे एक रूम हो गया, एक रूम के अंदर मेरा क्या होता है, इंफ्रारेड काम करता है। पावर कंजम्पशन इज लेस, सर्किट इज सिंपल, कॉस्ट इज लेस, सिक्योर देन रेडियो वेव, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस। बेसिकली मुझे रिमोट तैयार करना है, रिमोट तैयार करने के मुझे गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन माइक्रोवेव रेडियो वेव सिग्नल्स में मुझे लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। डिसएडवांटेज, दूसरी सबसे मेन चीज़ आती है कि जो सिग्नल है एक स्ट्रेट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही काम करता है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी रिमोट को कर दूं तो वैसे काम करना शुरू कर जाएगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे उसे पॉइंट करना पड़ता है। दूसरी, रेंज बहुत थोड़ी होती है। दूसरा, दीवारों के आर पार उसका सिग्नल नहीं, अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आती है, कोई चीज़ आ जाती है, तो उससे वो क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। नाउ वी हैव ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। The communication across long distance can be provided by the combination of radio frequency with satellite. It works over a long distance and fast communication. Satellite communication implies signal received from one earth station and are again retransmitted to another workstation, which can be located many thousands of miles. It can be used communication to save weak. Basically क्या है, सैटेलाइट्स के साथ सिग्नल जो होता है, तो देखिए सैटेलाइट्स का होगा मेरा स्पेस में होगा, तो उससे सिग्नल्स मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसमिट आराम से कर सकता हूँ। जैसे नेविगेशन की बात करते हैं, नेविगेशन ज़्यादातर सैटेलाइट्स के साथ ही होती है हमारे पास। प्लेन्स की नेविगेशन होती है, शिप्स की नेविगेशन होती है, तो हमारे उसमें हम जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। मेन फ़ायदा क्या है इसके, रेंज बहुत ज़्यादा होती है। वायर कम्युनिकेशन मीडिया के साथ क्या होता है, मैं एक लिमिट है कि इस एरिया में जा सकता हूँ, यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन सैटेलाइट मीडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वह हम उस रेंज में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो स्पेस में सिग्नल कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसे। डिसएडवांटेजेस क्या है, मेन कॉस्टली, क्योंकि मुझे इसके लिए सैटेलाइट्स वगैरह जो यूज़ करने पड़ते हैं। सारा का सारा सिग्नल्स कहाँ होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, इसको चलाने के लिए कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट हायर करने, स्पेसिफिक इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, स्पेसिफिक बंदे हायर करने पड़ते हैं, तो ये जा जाता है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकते हैं, जैमिंग, ईवड्रॉपिंग या टैपिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हैकर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है जो कर सकते हैं। देयर आर एटमॉस्फेरिक लॉस ऑफ ट्रांसमिट, कई बार सिग्नल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मेरा सिग्नल लॉस्ट भी कर सकता है। ना नेक्स्ट वन इज ब्लूटूथ। It is a wireless technology used to exchange data over the short distance to create an personal area network. It is invented by the Ericsson in 1994. Bluetooth is a short-range wireless data network, originally an alternate entangle of computer accessory wire. In addition, reducing the computer desktop cluster, Bluetooth allow hand-free operation for cell phone in vehicles. Basically, ब्लूटूथ भी मेरा बाकी वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की तरह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंफ्रारेड से हम इसे थोड़ा एडवांस मान सकते हैं। लेकिन अगर बाकी टेक्नोलॉजी से देखें तो उतना नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेड सी रेंज है, हर जगह हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली लाइक वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज़ वेरियस वायरलेस मीडिया लाइक हैंड फ्री, मेरा माउस, कीबोर्ड, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू चलती हैं, मेरे पास वायरलेस मीडिया होता है, लेकिन उसके लिए जो मुझे चीज़ चाहिए होती है वो क्या होता है, मेरा ब्लूटूथ। तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब बैटरी, देखिए वायरलेस मीडिया यूज़ कर चार्ज तो मुझे उसे करना ही पड़ेगा, तो बैटरी लाइफ का ही मुझे इशू होता है। दूसरा, मेरी जो स्पीड है डाटा ट्रैवल करवाने की वो भी कम होती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो हेयर वी हैव सम एडवांटेजेस, वी आर एबल टू शेयर डेटा विदाउट एनी कॉस्ट। बिना तार से हम कोई भी डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं या डेटा शेयर कर सकते हैं। वी आर एबल टू शेयर डेटा विदाउट डिस्क्लोजिंग अवर प्राइवेट डेटा। इट इज़ अ रेंज बेटर दैन इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ यूज फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ डिवाइस आर अवेलेबल एट वेरी चीप कॉस्ट।
The technology adopted in many products such as headset in car, printer, webcam, GPS. देखिए बेसिकली हमने पिछली बार पढ़ा था लास्ट लेक्चर में पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो अगर मैंने बिना वायर के साथ करना है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं हम, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, हम काफ़ी हद तक उसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वाईफाई डिवाइसेस थोड़े अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। It can lose connection in certain conditions. It is low bandwidth as compared to Wi-Fi. It allows only short range of communication between devices. Security is very key aspect. It can be hacked. देखिए मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा कि रेंज बहुत कम होती है, बैंडविड्थ बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेशन कर सकता है, हर डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। और लाइक अदर वाईफाई, अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी, दैट इज a security risk. It can be easily hacked. Now we have a Wi-Fi. Wi-Fi is spelled as a WIFI, is a local area network technology. It allows an electronic device to transfer data or connect to the internet using radio wave. It is an underlying technology of wireless local area network. Wi-Fi allows computer and other device to communicate over the wireless network. Basically होता क्या है, जिस तरह मेरे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी थी उसी तरह मेरी वाईफाई टेक्नोलॉजी है। वाईफाई टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, सेम मेरे पर्सनल एरिया नेटवर्क पे या मेरे लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर सकती है। मेरे कंप्यूटर, मेरे स्मार्टफोन, मेरे डिजिटल कैमरा, मेरे प्रिंटर, मेरे टैबलेट्स, इन सभी चीज़ों को क्या कर सकती है, वो एक साथ जो कनेक्ट कर सकती है। क्योंकि मैंने करना क्या होता है, एक हॉटस्पॉट बनाना होता है, एक हॉटस्पॉट के साथ ही मैं सारी चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, इसकी रेंज भी एक लिमिटेड तक, जैसे 20 मीटर, 30 मीटर, वो डिपेंड करता है मेरे वाईफाई डिवाइस के ऊपर और मेरी वाईफाई की टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जैसे IEEE के स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उनके साथ जो काम करती है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो देखिए लाइक हम यूज़ करते हैं 802.11 जो बेसिकली वाईफाई के लिए बना हुआ है। तो इस तरह आगे बढ़ते इनकी रेंज और उनका एरिया जो होता है अपने आप डिसाइड होता रहता है। जैसे लाइक हमने पढ़ा था एक नॉर्मल वाईफाई जो 20 मीटर तक काम कर सकता है, लेकिन अगर हम ये स्टैंडर्ड अगर डिवाइस अच्छा ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक 100 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर तक भी ये काम कर सकता है, 300 मीटर तक भी काम करता है, 100 मीटर, 200 मीटर तो आराम से काम करता है ये। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर आ जाती हैं। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, स्मार्टफोन पे। हम डेटा शेयर कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर आती हैं। नाउ वी हैव सम एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, जीरो केबल टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड बेस, access to the network instantly due to its simple and quick installation. The type of configuration can be free. The network can be used by several devices at the same time. Once the connection is configured, you can make your network resources, or we can share our network resources. Wi-Fi offers wide mobility within space of home and office. Access password can be changed instantly. Support to protocol called DHCP, which automatically assign IP to all other wireless client. देखिए बेसिकली क्या है, सेटअप करना बहुत आसान है, किसी भी तार की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ती है। मैं घर या ऑफिस में अगर मेरा वाईफाई है तो मैं सारे डिवाइस जो होते हैं जो वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उस पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरे पास देखिए एक ही वाईफाई हॉटस्पॉट होगा, उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो डाटा एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें क्या है कि अपने आप ही क्या करता है, ये जितने डिवाइस कनेक्ट होते जाते हैं उनको एक एड्रेस अपने आप प्रोवाइड करता जाता है, ये जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मुझे कोई एड्रेस नहीं बताना पड़ता है, वो अपने आप क्या करता है, मेरे जितने क्लाइंट जो होते हैं इसके साथ अटैच होंगे उनको अपने आप क्या करता जाता है, ये अटैच करता जाता है और एड्रेस जो होता है उनको देता जाता है, जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। डिसएडवांटेज, इंटरफेरेंस, the existence of electromagnetic wave is play may interfere with the connection signal. The signal dim or weaken when area surrounded by walls. The number of users that are connected is limited. Low level of security. Loss of data in signal transmission. Provide full access of network resource. The technology is not compatible with other wireless technology like GPRS, Bluetooth. According to the standard used, so it is limited connection speed, distance, depend on the reach of the signal. बेसिकली क्या है, देखिए ना, जब भी हम वायरलेस की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ होती है वो तो डिस्टर्ब करती है, तो ये तो लाइक अदर वायरलेस डिवाइसेज में ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा वाईफाई जो होती है, दूसरी जो टेक्नोलॉजी है मेरे पे वायरलेस, ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रा हो गया, GPR, इनके साथ ये कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि
एक सिस्टम में मेरे पास अगर वाईफाई चलता है, दूसरे में ब्लूटूथ चलता है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस का मैंने पहले ही बता दिया कि डिपेंड ऑन द डिवाइस, कि डिवाइस का सिग्नल कितने बैंडविड्थ पे काम करता है, कितने एरिया कवर कर सकता है। देखिए, एक रूम से दूसरे रूम में अगर मैं सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मेरी वॉल है, जो मेरी जो वुडन है वॉल है, इनके साथ इसका सिग्नल जो डिस्टर्ब होता ही रहता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वाईफाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाईमैक्स। वाईमैक्स बेसिकली क्या है? ये आया था हमारे पास वाईफाई को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वाईफाई की क्या था, एक लिमिटेड सी रेंज थी। उस रेंज से दूर करने के लिए मेरे पास एक कंसेप्ट आया था जिसे हमने बोला था वाईमैक्स। वाईमैक्स बेसिकली क्या था? एक तरह से वायरलेस सिग्नल ही था, जो कि माइक्रोवेव सर्विसेज के ऊपर काम करता था। क्योंकि हमें पता है माइक्रोवेव सिग्नल से होते हैं बहुत दूर तक क्या करते हैं, डेटा ट्रैवल करते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें ये हुआ था कि ये हमें क्या करता था, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो था ना, बहुत ज़्यादा फास्ट देता था। और मेन डिसएडवांटेज ये रही इसकी कि इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी जो बाकी चीज़ें थी, कॉस्ट था, जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, वो एज़ कम्पेयर टू वाईफाई जो थी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो लेकिन अच्छा था, यूज़ किया लोगों ने, अभी भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम इसे एक तरह से वाईफाई का अल्टरनेट नहीं मान सकते हैं। आया ये वाईफाई के अल्टरनेट में ही था, लेकिन उसके अल्टरनेट में ये चीज़ जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई। तो हेयर सम एडवांटेज, इट्स फॉर वेरी हाई स्पीड वॉइस डाटा, लॉन्ग डिस्टेंस, सिंपल वाईमैक्स several hundreds of user, high speed can be achieved, low cost, does not require telephone line, provide mobility to user to access the internet, design with better quality, no SIM required. बेसिकली ये कुछ एडवांटेज थे। लाइक अदर वाईफाई कनेक्शन हमें तारों की ज़रूरत नहीं थी। मोबाइल पे हम आराम से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते थे। बाई हम बिना सिम कार्ड के साथ इसे यूज़ कर सकते थे। फिर हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र इसके साथ इकट्ठे कनेक्ट हो सकते थे। जो इंटरनेट के ऊपर जो मेन चीज़ होती है, हमारा वॉइस, जो हम डेटा ट्रैवल करवाते हैं, पिक्चर्स, मूवीज़, वीडियोस, ग्राफिक्स ट्रैवल करवाते हैं, तो वो सारे इसमें यूज़ होते थे। तो सेलुलर कंपनीज थी हमारे पास, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने काम किया था। मेन डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके? बैड वेदर। वेदर देखिए, लाइक अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी, वेदर इज़ द मेन इशू है ना। वेदर जो होता है, अगर बैड वेदर है तो मेरा हर सिग्नल इंटरप्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी हो। इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी फर्स्टली, लेकिन लाइक अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी, अगर मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट इकट्ठे काम करते हैं, तो बैंडविड्थ क्या हो जाती थी, पुअर थी। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड फॉर वाईमैक्स डेवलपमेंट, हाईली इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। वाईमैक्स इज पावर कंजम्पशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इसके। लाइक ऑल द वायरलेस टेक्नोलॉजी हैव सेम एडवांटेज एंड सेम डिसएडवांटेज, मे बी लिटिल बिट डिफरेंस। लाइक ऑल वायरलेस टेक्नोलॉजी इनसिक्योर, लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, सारी की सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी मेरी क्या है, इनसिक्योर ही है। क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ को इंटरफेरेंस उसके अंदर हो सकती है। और जो मेन चीज़ थी सभी वायरलेस टेक्नोलॉजी की, वेदर हमेशा ही क्या करता है, मेजर इशू रहा है हमारे पास किसमें, वायरलेस टेक्नोलॉजी ने। सो दीज आर अवर ट्रांसमिशन मीडिया। सो in this transmission media we discuss two media. The first is wireless media, first is wired media, the second one is wireless media. In wired media we discuss twisted pair cable, coaxial cable, fiber optical cables. In wireless media we discuss various wireless media like Bluetooth, infrared, Wi-Fi, WiMAX, microwave, satellite, radio wave signal. So that's for today. Thank you and have a nice day. In next lecture we discuss the various topologies of computer network. So thanks. See you in next class.